جب میں اٹھا تو ایک بڑی خوبصورت بات، جب میں اپنے بستر پر تھا تو خدا نے ایک بڑی خوبصورت بات مجھے دی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج وہ آپ کی زندگیوں کے اندر وہ کام کریں گے۔ تو خدا نے، میں نہیں جانتا تھا، صبح جب میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا، تو خدا نے مجھے یہ ورڈ دیا، ٹوڈے دا ڈے آف یور میریکل، ٹوڈے دا ڈے آف یور میریکل۔ آج آپ کے معجزے کا دن ہے، آج آپ کے گھرانے کے بدلنے کا دن ہے، آج جبے بندے ٹوٹنے کا دن ہے، کیونکہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرا اور آپ کا خدا کر سکتا ہے، جس نام کے اندر قدرت ہے، جس نام کے وسیلے سے معجزے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا اور آپ کا خدا شروع سے معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسے عادت ہے معجزہ کرنے کی، اسے عادت ہے معجزہ کرنے کی۔ اس نے موسیٰ کے ذریعے معجزات کروائے، اس نے ایلیا کے ذریعے معجزات کروائے، اس نے الیشا کے ذریعے معجزات کروائے، ان کے ذریعے اس نے مردوں کو زندہ کروایا۔ لیکن جب وہ خود یسوع المسیح اس دنیا کے اندر آئے تو اس نے بھی بے شمار 38 معجزے کر کے دکھائے کہ وہ جو ایلیا، وہ جو الیشا، وہ جو یعقوب کے ساتھ تھا، وہ میں تھا اور میں ہی کر کے دکھانے والا تھا۔ اگر میں ان سے کروا سکتا ہوں تو آج تو میں خود یہاں پر موجود ہوں، اور معجزہ تو میرے نام سے ہے، اور معجزے کی قدرت تو میرے اندر پائی جاتی ہے۔ اس نے پانی پر چل کے معجزے کو دکھایا، اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور وہ تھم گئے، اور اس نے معجزہ کر کے دکھایا۔ اور سب سے بڑا معجزہ، اس نے موت اور قبر پر فتح پا کر موت کو للکارا، اے موت تیرا ڈنک آ رہا، اور وہ موت پر بھی غالب آیا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز ہاللیلویا۔ آئیے آج بڑی خوبصورت بات خدا نے مجھ سے کی، جب میں پریئر کر رہا تھا تو خدا نے کہا، پہلا تسالونیکیوں 5 باب اس کی 16 آیت کو ذرا میرے ساتھ پڑھیے۔ کلام پاک کیا فرماتا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، ہر وقت خوش رہو۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیے اور اسے کہیے ہر وقت خوش رہو۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیے اور کہیے ہر وقت خوش رہو، کہیے ہر وقت خوش رہو۔ آپ کے کہنے سے خدا ہو، کہیے ہر وقت خوش رہو، کہیے ہر وقت خوش رہو۔ جو آپ کے ساتھ ہے انہوں کہنا، جڑا تاڑے کول بیٹھے انہوں کہو ہر وقت خوش رہو۔ لیکن اگلی گل بھی کہنی چاہیے، بھیلا ناگا دعا کرے، اے ذرا اوکھا کام ہے، بھیلا ناگا، بھیلا ناگا، بھیلا ناگا۔ اچھا میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون یہاں پر موجود ہے جو بھیلا ناگا دعا کرتا ہے، جو ڈیلی دعا کرتا ہے؟ ہاللیلویا، پریز ہاللیلویا، خدا کی شکر گزار۔ اب جو نہیں کر پا رہے ان کے لیے بھی آج یہ کلام میں ایمان رکھتا ہوں ان کی زندگیوں کے اندر گہرے طور پر اثر کرے گا، اور آپ کی دعا آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ آمین۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جس مضمون کو سیکھیں گے وہ ہے خوش رہو، دعا کرو۔ خوش رہو، خوش رہو اور خوش رہو۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر پر اعتماد ہیں تو آپ خوش رہنا سیکھیں۔ آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو خدا کے تابع کیجئے، پھر خوشی ہے۔ کلام بیان کرتے ہیں خوش رہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ خوش ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر آج مشکلات ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ اس افراتفری کے عالم میں ہر شخص اپنی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ پریشان ہے۔ کیا ہے؟ پریشان ہے۔ لیکن خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ خوش رہو۔ کیا رہو؟ خوش رہو۔
अब खुदा का बंदा कलाम पाक के अंदर कहता है कि खुश रहो और क्या करो, दुआ करो। आपने अपने आप पर यकीन रखना है, अपने हालात पर। आपके हालात कैसे भी क्यों ना है, अपने खुदा पर एतमाद रखिए कि वो आपको खुशी दे सकता है। हालेलुया। वो आपको क्या दे सकता है? खुशी दे सकता है। आप अपने लिए मंसूबा बनाना शुरू कीजिए कि मैं कैसे दुआ करूंगा, मैं कैसे बाइबल मुकद्दस को पढ़ूंगा। आज हम देखते हैं, हम सुबह उठे, हमारा कोई प्लान ही नहीं। कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं। हमारी जिंदगी के अंदर मंसूबा नहीं है। हमारी जिंदगी के अंदर हम देखते हैं कि हमारी तरतीब ही नहीं है। कभी आप 7 बजे खुदा की हजूरी में जा रहे हैं, कभी आप 10 बजे जा रहे हैं, कभी आप 5 बजे जा रहे हैं। कलाम मुकद्दस कहता है खुश रहो और दुआ करो, खुश रहो और दुआ करो। आप अपनी दुआया रूटीन को शुरू करने से पहले मंसूबा बनाइए कि किस तरह से मैंने प्रेयर करी। 2 साल मेरे घर वाले इस बात को जानते हैं कि मैं डेली, मेरी ये रूटीन थी, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मैंने प्रेयर करी, फिर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रेयर करी, फिर 5 बजे से 6 बजे तक प्रेयर करी, फिर रात को 9 बजे से 10 बजे प्रेयर करी, फिर रात को 2:30 बजे से 3 बजे से सुबह 5 बजे तक मैंने दुआ करी। और ऐसा मैं कंटिन्यू 2 साल करता रहा। और उसके बाद अब भी जब मिनिस्ट्री कर रहे हो तो अब भी इसी तरह से प्रेयर जो है वो करो। आप मंसूबा कीजिए, आप यकीन कीजिए कि जो काम आप शुरू करने को है, मैं आज कोई काम शुरू करने का आपको नहीं बोलने वाला, मैं आज आपको इनकरेज करने वाला हूं, दुआ शुरू कीजिए। मैं आपको इनकरेज करने वाला हूं, क्या शुरू कीजिए, क्या शुरू कीजिए, दुआ शुरू कीजिए। आज जिस जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है, इब्लीस उस जिंदगी के अंदर सुराख बनाएगा, एंटर होगा और क्या करेगा, उसकी जिंदगी को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। खुश तो रहना है, लेकिन खुश रहने का एक कुलिया है, वो क्या है कि बिला नागा दुआ। अगर आप दुआ करना शुरू होंगे, आप मंसूबा बनाइए दुआ करना, आप इरादा करिए कि मैंने खुदा की हजूरी में झुकना है, उसके नाम को मुबारक करना। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, अगर आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, तो कैसे आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को हर वक्त कोसते रहते हैं, मेरे ना नहीं कदी चंगा होया पाशा, मेरी तो दुआएं नहीं सुनी जाती, मेरे हालात ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, मेरी चीजें ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। अपने आप को हर वक्त क्या करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। अपने आप को क्या करते रहते हैं, कोसते रहते। वो अपने आप को हर वक्त ये महसूस करवाते रहते हैं कि दुनिया के सब तो नकम्मा बंदा जड़ा ना वो मैं हूं। अपने आप को नाकाम खुद ही फील करवाते रहते हैं। जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो दूसरे आप पर क्यों भरोसा करें। अपने आप पर खुद भरोसा कीजिए कि हाँ आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं। अपने आप पर एतमाद कीजिए, उन चैलेंजेस का मुकाबला करिए जो दुआ से आपको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। उन चीजों का मुकाबला कीजिए। एलिया ने दुआ की, खुदा ने आसमान खोल दिया। एलिया ने दुआ की, खुदा ने क्या खोल दिया, आसमान खोल दिया। उसको पता था कि दुआ के जरिए ही खुदा आसमान को क्या कर सकता है, खोल। कल एक फैमिली को मैंने विजिट किया और जब उनके घर में मैं खड़ा हुआ तो मेरे साथ मेरी टीम के एक भाई थे, तो मैंने कहा इनके लिए परफेक्ट प्रेयर हुई और बाहर निकला तो मैं बताया, मैंने कहा भाई इस घर के अंदर जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी स्पिरिट ने ये बताया कि इनके घर के हालात कुछ इस तरह से हैं। और उन्होंने बताया कि पास्टर साहब आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये कैसे होगा जब आप दुआ करने के लिए बैठे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं खुशी का राज क्या है, दुआ है। दुआ करना शुरू कीजिए, खुदा आपके हालात को बदलना शुरू करेगा।
हम बहुत दफा अपने आप को देखते हैं कि मैं जो है वो नाकाम, मैं दुआ नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं लगता दुआ करने, वक्त नहीं है कि हम खुदा को क्या दें, वक्त दें। हमारे पास वक्त है, हम अपने बच्चों को वक्त देते हैं, हम अपने घराने को वक्त देते हैं, हम अपने अजीजों कारब को वक्त देते हैं, हम अपने मोबाइल चलाने को वक्त देते हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि हम खुदा की हजूरी में क्या कर सके, बैठ सके। आप दुनिया की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, जॉब कर ली, डबल जॉब कर ली, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैंने दुआ करनी है और वो मेरे थोड़े में भी बरकत देना जानता है। हालेलुया। जब आप दुआ करना शुरू करें, हम अपने आप पर यकीन कीजिए, और जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपने उन मुश्किलात से, उन परेशानियों से घबराना नहीं। बुज़दिल के रास्ते में जब वो रुकावट आती है, जब रुकावट आती है तो वो वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन जब किसी बहादुर के रास्ते में पत्थर आते हैं, रुकावट आती है, तो वो उन पर पांव रखता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपका खुदा आपके साथ है। आप अपने आप को बेवकूफ ना बनाइए, अपने पैसे के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आप परेशान हैं, आप डबल जॉब कर रहे हैं लेकिन आप दुआ नहीं कर रहे, आप दो जॉब कर रहे हैं लेकिन आप अपना बीज नहीं बो रहे, तो कभी हालात जो है वो तब्दील नहीं होंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने दुआ करनी, खुश रहो और दुआ करो, खुश रहो और दुआ करो। दुआ आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, बिला नागा दुआ आपकी जिंदगी का क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्या आप यकीन रखते हैं मैं उसमें कामयाब होऊंगा? अगर आप खुद पर ही यकीन नहीं रखते कि मैं जो दौड़ रहा हूं मैं उसमें कामयाब होऊंगा, तो फिर आप कैसे उस दौड़ के अंदर कामयाब होंगे? आपने डिसाइड किया मैं खिदमत करूंगा, आपकी मुखालफत हुई, लोगों ने आपको गिराना चाहा, आप बुज़दिल हो गए, आप गिरना शुरू हो गए, आपने प्रेयर छोड़ दी, आपका रिश्ता खुदा के साथ खत्म होना शुरू हो गया, लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, लोग आपके किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, आप बुज़दिल बनकर वहां पर क्या हो गए, बैठ गए। तो इसका मतलब है आप लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप खुदा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप खुदा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो आप उन रुकावटों को, मुश्किलात को, परेशानियों को, उन फाइनेंशियल ट्रबल्स को, उन सारी चीजों को बताइए, उस मुश्किल से कहिए तू नहीं जानती मेरा खुदा बहुत बड़ा है, तू नहीं जानती मेरे खुदा के अंदर कुदरत पाई जाती है। उन पत्थरों को, उन रुकावटों को जो आपके रास्तों में खड़ी है, उनको बताइए कि मेरे यीशु नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। आपका यीशु आपके साथ है, आपका यीशु आपके साथ है। आप सच्चे दिल से कोशिश करना शुरू कीजिए, आप खुदा के तालिब हो जाइए। हाँ मैं खुश रहना चाहता हूं, तो बिला नागा क्या करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। और जो लोग नाकाम होते हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ अपनी नाकामियों पर, अपने नुकसानात की तरफ ही क्या रखते हैं, नजर रखते हैं। अच्छा ऐ भी काम मैं शुरू किया, ऐ भी इंज हो गया, मैं ऐ किया, ऐ भी इंज हो गया, मैं ऐ किया, ऐ भी इंज हो गया। लेकिन कामयाब लोग बेहतरीन की तवक्का करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए बेहतरीन करेगा, हमारा खुदा हमारे हालात को बदलेगा, हमारा खुदा हमारे घराने को बदलेगा, हमारी जिंदगी को बदलेगा। और जब आप अपने आप पर एतमाद रखेंगे, वही खुद एतमादी आपको अंदर से अपने आप के अंदर ही हीरो बना देगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। आप जिस भी हालात के अंदर आज मौजूद हैं, आपका खुदा जानता है। आप जैसी भी जगह पर खड़े हैं, आपका खुदा जानता है। एक दफा अपने दिल पर हाथ रखिए और एक हाथ को अपने ऊपर उठाइए
और उन मुश्किलात को, उन परेशानियों को कहिए कि ऐ मुश्किलों, ऐ परेशानियों, क्या तुम नहीं जानती मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत है। जब ये अल्फाज आप अपने लिए बोलेंगे, आपको उसका रूह कुदस छुएगा। आप जहां पर परेशान है वहां पर वो आपको छुएगा, आपको कुछ दिखाएगा। ही बारसिया लाला इमन तोलो लिया लाला सीरिया बाबा हे बारका बाटिकी बाबा बाबा रोबोरिजिया रबाता नमन तो सीली लिया बाबा बाबा। ऐ मुश्किलात, ऐ परेशानियों, मैं तुम्हें यीशु के नाम से जाने का हुक्म देता हूं। हमारा खुदा बड़ा खुदा है और खुदा मादी आपके रास्ते को खोलती जाएगी। आप अपने आप पर यकीन रखिए कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। जो लोग सितारों पर नजरें रखते हैं वही सितारों तक पहुंचते हैं, और जिनकी नजरें जमीन पर हैं, जमीनी लोगों पर हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, वो वही उन लोगों के चक्रों में रहेंगे। अगर आपने अपनी नजरें सितारों पर डाली हैं, अगर आपने अपनी नजरें हेवन पर डाली हैं, तो दुनिया की चीजें आपको कुछ कर नहीं सकती। आप इसलिए बुलाए गए हैं, और मैं बताता हूं कि मसीही लोग जो हैं वो इसलिए बुलाए गए हैं। मसीही लोग इब्लीस के हाथों से शिकार होने के लिए नहीं बुलाए गए। मसीही लोग तो वो लोग हैं जो इब्लीस का शिकार करने के लिए बुलाए गए हैं। आप वो लोग हैं जो इब्लीस के शिकार करेंगे। आप वो लोग हैं जो उसकी कुफ्तों के खिलाफ खड़े होंगे और उसके अपने पांव के नीचे रखेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका यीशु, आपके साथ आपका यीशु है। आप शिकार होने के लिए नहीं बुलाए। कलाम बयान करता है इब्लीस शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि कब कोई मिले और उसे फाड़ खाए, और आप उसका शिकार होने के लिए नहीं बुलाए गए। आप उसका शिकार होने के लिए नहीं बुलाए गए। आप इसलिए बुलाए गए हैं कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आपके लिए जिंदगी है, आपके लिए बरकत है। आपकी जिंदगी आपके खुदा के, आपके हालात आपके खुदा के हाथ। आप इसलिए बुलाए गए हैं कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। उस इब्लीस, उस ताड़ने वाले को बताइए कि मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा हाँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा खुदा कुदरत वाला है। उसकी आवाज के अंदर कुदरत है, उसके बोलने में कुदरत है। जब वो कह देता है तो सब कुछ क्या होता है, हो जाता है। हालेलुया। हमें अपनी कामयाबियों पर नजर रखनी। और बाइबल मुकद्दस की एक आयत मुझे बड़ी पसंद है। अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार किया। बहुत सारे दुनिया के अंदर आपको लोग मिलेंगे, लेकिन कलाम के अंदर आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत वर्ष लिखी है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम मुकद्दस बयान करते हैं, तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। आप खुदा का मक़दस हैं। जब आपके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, तो जिसके अंदर खुदा का रूह है, क्या वो अपनी जिंदगी के अंदर नाकाम हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। आपने अपने आप पर यकीन रखता है कि मेरे अंदर तो खुदा का रूह है और वो मुझे बढ़ाना चाहता है, वो मेरे हालात को तब्दील करना चाहता है। आज हमने जब जगह को चेंज किया तो खुदा मुझसे कह रहा था, Today the day of your miracle. Today the day of your miracle. So don't worry, God is with you. आज सुबह खुदा मुझसे कह रहा था कि तेरे मोर्चे का दिन है, तूने परेशान नहीं होना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं यकीन कीजिएगा, मैं ईमान रखता हूँ, उसकी हुजूरी मौजूद है, वो मेरे अंदर मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है। और कलाम का ये हिस्सा आज पूरा होता है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, वो आपके अंदर है। वो आपको नाकाम नहीं देखना चाहता, वो आपके कारोबार को बरकत देना चाहता है। आप जिन हाथों से साज बजाते हैं, वो आपके उन हाथों को बरकत देना चाहता है। आप जिन जगह से खड़े होकर गाते, जिस हारमोनियम को बजाते हैं, खुदा आपकी उन चीजों को बरकत दे। वो आपके किचन को बाबरकत करना चाहता है, वो आपके रुपए पैसे के अंदर बरकत देना चाहता है। लेकिन एक बेहतरीन राज ये है कि बिला नागा खुश रहो और दुआ करो। आप दुआ करना शुरू कीजिए।
अगर आप आज फतह हासिल करने से डर रहे हैं कि मैं कैसे फतह हासिल करूंगा, लोग मुझे छोड़ गए, मेरी मुखालफत है, घर के अंदर कुछ नहीं है, तो फिर आपकी फतह जो है वो यकीनी है, क्योंकि आपको अपने आप पर एतमाद नहीं है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए और इस बात पर पुख्ता यकीन रखिए कि मैं खुदा का मुक़द्दस हूं और उसका रूह मेरे अंदर क्या है, बसा हुआ है। जब वो आपके अंदर बसा हुआ है, वो आपकी चीजों को भी बदलेगा, वो आपके घराने को भी बदलेगा, वो आपकी जिंदगी को भी बदलेगा। और मैं आज खुदा का शुक्रगुजार हूं कि वो हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। कलाम बयान करता है वो गिरे हुए को क्या करता है, उठा खड़ा करता है। आज अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं गिरा हुआ हूं फाइनेंशियली तौर पर, मैं अपनी मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ, मैं परेशानियों के अंदर गिरा हुआ, मैं हालात की वजह से तंग हूं, तो आपका खुदा मौजूद है आपको उठाने के लिए। आपका खुदा मौजूद है आपके हालात को बदलने के लिए। ज़बूर 18 के अंदर लिखा है कि वो अपना हाथ ऊपर से बढ़ाता और क्या करता है, थाम लेता है। आप दुआ कीजिए, जब आप अपने हाथों को उठाएंगे वो आपके हाथों को क्या करेगा, थाम लेगा। जब आप दुआ करना शुरू करेंगे आपके हाथ उसके हाथों में आ जाएंगे और वो आपके हाथों को क्या कर लेगा, थाम लेगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। आज बहुत सारे लोग कलाम तो सुनते हैं लेकिन एक कान से सुना और दूसरे से क्या किया, निकाल दिया। जो कलाम पर अमल करता है वो मुबारक ठहरता है और जो कलाम पर अमल करता है वो अपनी जिंदगी को, अपने हालात को क्या करता है, बदलता हुआ देखता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो बिलानागा दुआ कीजिए, क्योंकि टुडे द डे ऑफ योर मिरेकल, टुडे द डे ऑफ योर मिरेकल, सो डोंट वरी, गॉड इज विद यू। आज का दिन आपके मोर्चे का दिन है, यकीन रखिए आपका खुदा आपके साथ है। वो यीशु से कहते हैं जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज इस बात से घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं है कि हमने जगह चेंज की है, हम यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, बल्कि इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाइए कि मुझे एनकाउंटर ऑफ जीसस चाहिए, मुझे खुदा के मैं दीदार का तालिब हूँ, मुझे उस यीशु से मुलाकात करनी है। ये जहान उसके है, ये आसमान उसके है, ये चरिंद परिंद पहाड़ उसके है। और जब आपका एनकाउंटर ऑफ जीसस हो जाएगा तो वो आपको दुनिया की बेहतरीन जगह देगा। हालेलुया। सो डोंट वरी, गॉड इज विद यू। परेशान ना होइए, आपका खुदा आपके साथ है। घबराइए नहीं, आप जिस सिचुएशन के अंदर है घबराइए नहीं, आपका खुदा आपके साथ है। आज अपने लिए दुआ कीजिए कि खुदावंद मैं बिलानागा दुआ कर सकूं, मैं बिलानागा बाइबल पढ़ सकूं, मैं तेरे कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करूं ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, खुश रहिए और दुआ करिए, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बरकत को लेकर आए। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बहुत ज्यादा बरकत। आमीन। मैं एक दफा चाहता हूँ जो आपके साथ बैठा है, एक दफा फिर मुस्कुराते हुए उसे कहिए खुश रहो और दुआ करो, खुश रहो और दुआ करो, खुश रहो और दुआ करो।